طریقہ ہم نے سیکھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ لگائیں، اس کے اوپر زبر دیں اور پھر اس طریقے سے جہاں پر آواز رک جائے وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد الف معروف کی آدھی آواز، الف معروف کی پوری آواز، الف معروف کی دگنی آواز، الف معروف کی چوگنی آواز، الف معروف کی کچی تختی، الف معروف کی پکی تختی، الف معروف کی اکھٹی تختی، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ تو اس کے بعد ہم نے یائے معروف کو پڑھا، یائے معروف کی کچی تختی، یائے معروف کی اکھٹی تختی، یائے معروف کی پکی تختی، اس کی آدھی آواز، پوری آواز، دگنی آواز، چوگنی آواز، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 6 آج کا سبق ہے اور اس سبق میں لکھا گیا ہے یائے معروف کی پوری آوازوں کی اشکال، ہے نا۔ تو یائے معروف کا ہم نے پڑھا تھا کہ حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف علت 3 ہیں، الف ہے، یا اور واو، ہے نا۔ الف، واو اور یا۔ تو یا جو ہے وہ زیر کی شکل اختیار کرتا ہے نا، یعنی جب ہم یا کو پڑھیں گے تو اس کی آواز نیچے کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کل یا معروف کے بارے میں ہم نے پڑھا، آج اس کے مشق کے حوالے سے تھوڑا بہت ہم مشق کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن آگے بڑھیں گے۔ نمبر 1 پر کچی تختی دیا ہے، یا معروف کی تا کے نیچے کیا ہے؟ بڑا زیر، ہے نا۔ تا کے نیچے کیا ہے؟ بڑا زیر۔ یہ آدھی آواز ہوگی یا پوری آواز؟ پوری آواز۔ پوری آواز ہوگی۔ کون سی آواز ہوگی؟ پوری آواز۔ پوری آواز ہوگی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا کھڑی زیر ٹی، تا کھڑی زیر ٹی، تی نہیں پڑھیں گے، تی، ہے نا۔ تا کے بارے میں بتایا تھا کہ موٹے حرف میں سے آتے ہیں، ہے نا۔ تا جو ہے موٹے حرف میں سے آتے ہیں، اس لیے تا کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تی بولے تو تا ہو جائے گا، ہے نا۔ تی کیا پڑھیں گے؟ ٹی، لام زیر لی، با زیر بی، کاف کھڑی زیر ای، سی، ہے نا۔ سی جو ہے یہ سیٹی والے حرف ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ سی، پی، بی، لی، کی، جی، لی، دی، ای، خی، ری۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انگلی اتنی رہے تو آدھی آواز اور کھڑی ہو جائے تو پوری آواز۔ پوری آواز۔ ٹھیک ہے۔ یہ بیٹری سے شاید چارج ہے نا، ایسا بات خیر۔ تو اس کو بند کر دیں۔ تو اگر انگلی آدھی رہے تو کتنی آواز؟ آدھی آواز، اور کھڑی رہے تو پوری آواز۔ اپنے کو اتنی ہی بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دگنی آواز جائیں گے۔ کون سی آواز جائیں گے پھر؟ دگنی آواز۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہ والا ہم اکٹھی تختی پڑھتے ہیں، کیسے پڑھیں گے؟ تی، کیسے پڑھیں گے؟ تی، اتنا نہیں، تی نہیں پڑھیں گے، دگنی آواز ہو جائیں گی، ہے نا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تی، لی، لی، بی، بی، ہے نا۔ اور اسی پکی تختی کو تی، لی، لی، بی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے دیا ہے، اوپر سے تی، بی۔ اب نیچے کو بھی ہم وہاں لے آ کے، جیسے کہ ٹی، سی، بی ہے، اس کو بھی ہم وہاں لے آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہی حروف کو ہم وہاں پر جو ہے لکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کے لیے بھی ہے، اس سے اور جلدی آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے قلم اور کاپی لے کر کے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس کی پریکٹس اگر آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، ہم نے کوئی بھی 3 حرف لے لینا ہے، یہاں نیچے 3 حرف ہے، میم، لام، کاف، ہم لے لیا، وہاں پہ ملا دیا اس کو، می، لی، کی، ہے نا۔ اور کھڑا ہو جاتا ما، لا، کا،
क्या होगा मी ली ई जी ली दी। ठीक है, इस तरीके से आपको मश करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इकट्ठी तस्दीक का मशक दिया है, जो हम चाह रहे थे वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? कितनी आवाज़ आनी चाहिए? पूरी पूरी आवाज़ आनी चाहिए। तो पढ़ के बताइए एक साथ मिलकर सब। ही ली मी ही ली। आप कहाँ से होगा? जुबान की जड़ ऊपर के तालू से लगाइए। ये पूरी जीभ है ना, आखिरी वाला हिस्सा ऊपर तालू लगाइए। कैसे पढ़ेंगे? क्या कहेंगे? आप मोटे हरूफ में जाते हैं, पढ़ेंगे ऐन का मखरज क्या है? हल्क का बीच वाला हिस्सा निकाल के पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। खा का मखरज क्या है? हल्क का आखिरी वाला हिस्सा, यहाँ से खी पढ़ेंगे। खी। हमको एहसास होना चाहिए कि खा निकल रहा है मेरा, हमको एहसास होना चाहिए कि मैं खा को निकाल पा रहा हूँ। कैसे पढ़ेंगे? खी दी मी। दाल का मखरज क्या है? जुबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ से। दी 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 मी मी दी री री जी ही दी नी शी री दी खी ली। याय मारूफ की पूरी आवाज़ों के इश्काल में अब पक्की तख्ती है। कच्ची तख्ती के बाद घसी तख्ती और अब पक्की तख्ती। मैंने पहले बताया था कि जो काम खड़ी जेर करेगा वही काम या करेगा, क्योंकि या साकिन से पहले जब भी जेर आ जाए तो वो याय मारूफ की पूरी आवाज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आया कि नहीं आया? तो ये अब पूरी आवाज़ हो जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? लाल का मखरज क्या है? ज़बान की नोक सामने वाले दांतों का आधा हिस्सा है ना। कैसे पढ़ेंगे? एक बार आओ। याय मारूफ की पूरी आवाज़ों के इश्काल में से जोड़ और तोड़ के ताल्लुक से है ना। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। याय मारूफ की ये पूरी आवाज़ नहीं है, ये आधी आवाज़ है। कौन सी आवाज़ है ये? आधी आवाज़ है ना। पूरी आवाज़ और आधी आवाज़ में फ़र्क क्या है कि जब डंडी जो है, अलिफ जो है वो खड़ा रहे तो पूरी आवाज़, तिरछी हो जाए तो आधी आवाज़। अब यहाँ खड़ा है कि तिरछी है? तिरछी है तो ये आधी आवाज़। ऊपर लिख दिया, पूरी आवाज़ लिखने में कभी वैसी हो गई है। कौन सी आवाज़ है ये? आधी आवाज़। अब हम कैसे पढ़ेंगे? दोनों को मिलाएंगे। पहले यहाँ पे तोड़ में खाजेर लमाना नहीं है, आधी आवाज़ है बस। खाजेर 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 लाल जेर जी। क्या हो जाएगा? खीदी। खीदी क्या हो जाएगा? खीदी क्या हो जाएगा? खीदी। यहाँ पर लाल के ऊपर जबर कर दिया है तो खीदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खीदा क्या हो जाएगा? खीदा। ठीक है, बढ़ते हैं। इजी। क्या पढ़ेंगे? इजी। 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 इजी नहीं पढ़ सकते। एजे नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ेंगे? इजी। 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 जा कौन से हरूफ है? जा सीटी वाले हर्फ हैं। सीटी की आवाज आएगी। इजी। 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 तेरी
क्या पढ़ेंगे तीरी, क्या पढ़ेंगे तीरी। तीरी नहीं पढ़ेंगे, तीरी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ताज़ेर ती, ताज़ेर ती, तीरी, क्या पढ़ेंगे तीरी, क्या पढ़ेंगे तीरी, ये क्या है बीरी, क्या है बीरी, तीरी, सीरी, सीली, सीली। मैंने एक बार बताया था कि रा के ऊपर जब भी जबर या पेश हो तो रा को क्या पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे, है ना, और जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जोड़ को 3 हर्फ के साथ मिला के दिया है, खा फा जेर, खी, खा फा जेर खिफ, खिफ, खा फा जेर खिफ, खिफ। जब भी कोई हर्फ किसी हर्फ से मिलेगा, अब वहाँ पे खींचने वाला मसला अलिफ मारूफ या मारूफ वाय मारूफ वाला मसला अब नहीं आएगा। अब यहाँ पर खा को फा से हम क्या करेंगे जोड़ रहे हैं, है ना। अब इंशाल्लाह हम इसका शद मद जज़म के बारे में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है अलामतें हैं। ये क्या है अलामतें, जज़म शद मद, ये क्या है ये अलामतें हैं। और ज़बर ज़ेर पेश ये क्या है ये हरकतें हैं। ये क्या है हरकतें ये हैं। हरकतें हैं। तो इंशाल्लाह हम अलामतों के ताल्लुक से आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर खा को फा से मिलाएंगे, क्या पढ़ेंगे खा फा ज़ेर खिफ, खिफ, खीफ नहीं, खेफ नहीं, क्या पढ़ेंगे खिफ। खिफ क्यों पढ़ेंगे क्योंकि खा के नीचे जो डंडी है वो तिरछी है और उसकी आवाज आधी है। उसकी आवाज क्या है आधी है और वो मारूफ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है मारूफ पढ़ना है। तो आधी आवाज पर जब हम मारूफ पढ़ेंगे तो खीफ कहेंगे तो आधी आवाज होगी नहीं, पूरी हो पूरी आवाज जाएगी, नहीं। खेफ कहेंगे तो मारूफ होगी मजूर हो जाएंगी। तो आधी आवाज भी पढ़नी है और मारूफ भी पढ़नी है। तो कैसे पढ़ेंगे खा फा जेर खिफ, क्या पढ़ेंगे खिफ, खिफ, खा को भी निकालना है और फा को भी निकालना है। क्या पढ़ेंगे खिफ, क्या पढ़ेंगे खिफ, नहीं तो क्या पढ़ेंगे खिफ, क्या पढ़ेंगे खिफ, क्या पढ़ेंगे खिफ, ताजेर ती, ताजेर ती, ती नहीं, ते नहीं, ताजेर ती, खिफ ती, क्या हो जाएगा ती, क्या हो जाएगा खिफ, ती, खिफ ती, क्या हो जाएगा खिफ, ती, हमजा आइन जेर ई, क्या पढ़ेंगे आइन को निकालना है ना। क्या पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हमजा आइन जेर दाल जेर दी, क्या हो जाएगा ई, दी, दी, क्या हो जाएगा दी। दी। किसी का आगे लामा पर जो बढ़ा दो चला दिलू जो हम कुरान में पढ़ दें, है ना। अब ये 2 3 हरूफ है, फिर 4 हरूफ, फिर 5 हरूफ, फिर 6 7 हरूफ मिला मिला के इंशाअल्लाह, ताकि आपको कुरान सही से पढ़ना आ जाए। बार बार तवज्जो दीजिए, हरूफ की अदायगी पर खास और उसके लगाने पर खास तवज्जो होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमजा आइन जेर क्या हो जाएगा आइन कहाँ ज़्यादा होता है हल्क के बीच वाले हिस्से से। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दाल जेर दी, दाल जेर दी, दी नहीं, है ना, दाल जेर दी। ये उंगली कर लेना है इसे, दाल जेर दी, दाल जेर दी, दाल जेर दी, 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 आइन नून जेर रिन, क्या पढ़ेंगे रिन, क्या पढ़ेंगे रिन, आइन नून जेर रिन, आइन नून जेर रिन, दाल जेर दी, दाल जेर दी, क्या हो जाएगा दी, दी, क्या हो जाएगा दी, क्या हो जाएगा दी, हमजा हाजिर इह, क्या हो जाएगा इह नहीं, इह छोटी हा ना, छोटी हा का मखरज कौन सा है हल्क का शुरू वाला हिस्सा, यहाँ से सीने की तरफ से वाला हिस्सा, शुरू वाला हिस्सा छोटी हा का है। तो क्या पढ़ेंगे हमजा हाजिर इह, दाल जेर दी, इह दी, दी, इहदिनस सिरात, है ना, इहदिनस 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 नहीं होता, क्या होता इहदिनस, क्या होता है इहदिनस सिरात, है ना। अब इंशाल्लाह इहदिनस सिरात पूरा जुमला भी आएगा इंशाल्लाह आगे। फिर है बासिन जेर बिस, बासिन जेर बिस, बिस, मीम जेर मी, क्या हो जाएगा बिस्मी, क्या हो जाएगा बिस्मी, क्या हो जाएगा बिस्मी, हम पढ़ दें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह नहीं होता, क्या होता? बिस्मिल्लाह। क्यों बिस होता? क्योंकि बा के नीचे जो जेर है वो बता रहा है कि मेरी आवाज आधी है। वो क्या कह रहा है कि मेरी आवाज आधी है, तो मुझे पूरी मत पढ़ना वरना गलत हो जाएगा। जब आधी है तो हम आधी आवाज निकालेंगे, बीस नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? बिस। क्या कहेंगे? बिस। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, कार लोग क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना? तो बिस्मी क्या हो जाएगा? बिस्मी। चलिए आगे बढ़ाइए। उसके बाद देखिए माशाअल्लाह, बाज़ेर बी, बाज़ेर बी, हा मीम जेर हिम, हा मीम जेर हिम, मीम के ऊपर जज़म है, हा को मीम से मिलाना है, बा के नीचे जेर है, तो बाज़ेर बी, बोलिए बाज़ेर बी, आप लोग पढ़िए बाज़ेर बी, क्या पढ़ेंगे? बाज़ेर बी, हा मीम जेर मी, हा मीम जेर हिम, हिम, हा मीम जेर हिम, तो क्या हो जाएगा? बिहिम, 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 फी कुलूबिहिम, फी कुलूबिहिम, फी कुलूबिहिम मरद, है ना? तो बिहिम, काफ जेर की, काफ जेर की, हा मीम जेर हिम, क्या हो जाएगा? किहिम, बिहिम, क्या हो जाएगा? किहिम, क्या हो जाएगा? किहिम, फकीहिम, कुरान में है। आगे बढ़ते हैं, बाज़ेर बी, बाज़ेर बी, ताराज़ेर सिर, ता, क्या पढ़ेंगे? सा, ताराज़ेर सिर, ताराज़ेर सिर, तो क्या हो जाएगा? बिसिर, बिसिर, क्या हो जाएगा? बिसिर, क्या हो जाएगा? बिसिर, आगे पढ़िए आप लोग, पढ़िए आप लोग, लाम जेर ली, हामिम जेर हिम, लिहिम, क्या हो जाएगा? लिहिम, क्या हो जाएगा? लिहिम, नीचे जीम जेर जी, हामिम जेर हिम, जीहिम, 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 नीचे नून जेर जेर नी, हामिम जेर हिम, निहिम, ऊपर जबानी पढ़ते हैं बीहिम, बिहिम, ईहिम, बिहिम, बिसिर, बिसिर, लीहिम, लिहिम, जीहिम, जीहिम, नीहिम, निहिम, इधर पढ़ते हैं नीहिम, निहिम, जीहिम, जीहिम, लीहिम, लिहिम, बिसिर, बिसिर, लीहिम, किहिम, बीहिम। बिहिम, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। याए मारूफ की पूरी आवाज़ों की आदि आवाज़ों के इश्काल, तोड़ और जोड़। देखिए बाज़ेर, पहले तोड़ में आते हैं, बाज़ेर बी, आदि आवाज़ है, बा के साथ एक अलिफ भी है ना? बा के साथ अलिफ भी है, अलिफ भी है। अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा, खाली होता है, जो भी अलिफ रहे उस पर ज़बर जेर पेश कुछ लग सकता नहीं है, वो हमेशा खाली होता है। जिस पर ज़बर जेर पेश लगा तो वो हमजा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हमजा बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हमजा बन जाएगा, वो हमजा हो जाएगा। वो अलिफ हो सकता नहीं है, नहीं हो सकता। बीमा में मीम अलिफ ज़बर मा, जो कहते हैं मीम अलिफ ज़बर मा, तो वो आखिर वाला जो है वो अलिफ है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। मीम के ऊपर ज़बर है, बस मीम को अलिफ साथ मिला देते हैं। यहाँ पर जो कि उसके नीचे जेर है, क्या है उसके नीचे? जेर है, तो अब ये अलिफ नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? ये हमजा है। हमजा जो है, हमजा की कोई शक्ल नहीं है, हमजा की कोई शक्ल नहीं है, कोई शक्ल। ऐन के सर को हमजा बना दिया गया है। ऐन का सर जो है, ऐन का जो सर है, देखना छोटा, हम हमजा पढ़ते कैसे पढ़ते हैं, ऐन की तरह बना देते हैं, उसके सर को, अब हमजा को समझाए कैसे, तो उसको ऐन का सर बना दिया। क्या बना दिया? ऐन का सर बना दिया कि भाई इसी को तुम हमजा समझ लो, वरना हमजा की कोई शक्ल नहीं है, क्योंकि हमजा कभी अलिफ की शक्ल में आता, कभी या की शक्ल में आता, कभी वाव की शक्ल में आता है। ठीक है ना? इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। अब यहाँ पर जेर है तो ये हमजा है, अलिफ की शक्ल में हमजा है। किसकी शक्ल में हमजा है? ये अलिफ की शक्ल में, अलिफ की शक्ल में क्या है? ये हमजा है। हमजा है। तो बाज़ेर बी, अब हमजा को जाल में मिला देंगे, जाल में जज़म है, सुकून है, मिलेगा तो कैसे पढ़ेंगे? इज़, हमजा जाल जेर इज़, इज़ क्या हो जाएगा? इज़, क्या हो जाएगा? इज़, बाज़ेर बी, हमजा जाल जेर इज़, इज़, क्या हो जाएगा? इज़, इज़, बिइज़, क्या हो जाएगा? बिइज़, बिइज़, क्या हो जाएगा? बिइज़, बिइज़, क्या हो जाएगा? बिइज़, नून जेर नी, सब आधी आधी आवाज है, तो क्या हो जाएगा? बिइज़्नी, बेइज़्नी नहीं, बीइज़नी नहीं,
کیا ہو جائے گا بِإِذْنِي اِذْنِی کیا ہو جائے گا بِإِذْنِی اِذْنِی کیا ہو جائے گا بِإِذْنِی آدھی آواز ہے کیا ہو جائے گا بِإِذْنِی کیا ہو جائے گا بِإِذْنِی نیچے پڑھتے ہیں با زیر بی بی میم را زیر بی مف کیا ہو جائے گا مس کیا ہو جائے گا مس بی مف بِمِثْ کیا ہو جائے گا بِمِثْ لام زیر لی کیا ہو جائے گا لی بِمِثْلِ کیا ہو جائے گا بِمِثْلِ کیا ہو جائے گا بِمِثْلِ با زیر بی سین حا زیر سی سح سح کیا ہو جائے گا سح 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 نہیں سیح نہیں سح کیا ہو جائے گا سی بسح بِسِحْ بسح بِسِحْ را زیر ری کیا ہو جائے گا را بسحری کیا ہو جائے گا بسحری کیا ہو جائے گا بِسِحْرِ با زیر بی لال کاف زیر ذکر کیا ہو گیا بذکر کیا ہو جائے گا بِذِکْرِ را زیر ری کیا ہو گیا بِذِکْرِ ذک کیا ہو جائے گا بذکر دال کا مخرج کیا ہے زبان کی نوک اور دال کا آدھا حصہ تو اب جو نوک کو باہر نکالیں گے کیسے پڑھیں گے بذکری کیا پڑھیں گے بِذِکْرِ کیا پڑھیں گے بِذِکْرِ اوپر سے پڑھتے ہیں بِإِذْنِ بِإِذْنِ بِمِثْلِ بِمِثْلِ بِسِحْرِ بِسِحْرِ بِذِكْرِ 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 بِسِحْرِ بِسِحْرِ بِمِثْلِ بِمِثْلِ بِإِذْنِ بِإِذْنِ ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات آگے بڑھتے ہیں یا معروف کی آدھی آوازوں کی اشکال جو جاتی ہے جیم زیر جی را زیر ری کیا ہو جائے گا جیری 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 فا زیر فی کیا ہو جائے گا جیری جیری فی جیری فی جیری فی نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا جیری فی کیا ہو جائے گا جیری فی نیچے عیدیلی عیدیلی رزقی رزقی حکیمی حکیمی شکیری 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 شخیری شکیری شخیری شکیری حکیمی 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 رزقی رزقی عیدیلی عیدیلی جیری فی جیری فی اسی کو الٹا کریں گے فیری کی فیری ہوتا ہے نا ساری ہو جاتا ہے ہاں فیری کی فیری جی لیدی لیدی یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے نا کیزیری کیزیری میکی مطلب یہ ہے کہ توڑ پھوڑ کا ایسا پڑھیے کہ ایک ایک حرف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے جب آپ قرآن پڑھیں تو فوراً سے فوراً ایک ایک حرف آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے آ جائے ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد عین را اور میم تین حرف کو ملا کر یہ کر دیا ہے عین زبر ع ہے نا را زیر ری کیا ہے عری عری کیا پڑھیں گے عری میم زبر کیا ہو جائے گا علیمہ علیمہ کیا ہو جائے گا علیمہ عریمہ تا سین زبر تس تس تا کے اوپر زبر چھوٹ گیا ہے سین کے اوپر زبر چھوٹ گیا ہے نا ملا کے پڑھے گا تا سین زبر تس یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تس بھی پڑھ سکتے ہیں تس بھی پڑھ سکتے ہیں تس بھی پڑھ سکتے ہیں ہے نا لیکن تسمع ہے کیا ہے وہ تسمیہ ہے نا ہم تس پڑھتے ہیں کیونکہ زبر کی بات چل رہی ہے پیش کی بات چل رہی ہے تو ہم تس پڑھتے ہیں ابھی تا سین زبر تس میم زیر می کیا ہو جائے گا تسمی عین زبر کیا ہو جائے گا تسمیہ تا کو ہٹا دیں گے سمع کیا ہو جائے گا سمع 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 اللہ لمن حمد سمع کیا ہو جائے گا سمیہ کیا ہو جائے گا سمیہ تسمع کیا ہو جائے گا تسبیح تسمیع نہیں ہو سکتا آدھی آواز ہے تسمیع کیا ہو جائے گا تسمیہ فریح فریح کیا ہے فریح حمیدہ حمیدہ رحیمہ 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 نہیں ہو سکتا رحیمہ کیا پڑھیں گے رحیمہ 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 حمیدہ حمیدہ فریحہ فریحہ تسمیع تسمیہ حریمہ عریمہ یہ دینی لفظ ہے اس کو با کر دیا ہے نا ایک نقطہ اس کا چھوٹ گیا ہے تبنی ہو گیا ہے اور نون کے لیے زیر دیا ہے یا کے ساتھ جو ہے جزم بھی چھوٹ دیا گیا ہے نا
उस हर्फ को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। नीचे का पढ़ लेते हैं, हादी, है ना। हा अलिफ जबर, आधी आवाज होगी, पूरी आवाज, पूरी आवाज, पूरी आवाज होगी। कौन सी तख्ती है ये? अलिफ मारूफ की, अलिफ मारूफ की पक्की तख्ती है। कौन सी तख्ती है? पक्की तख्ती। दो हरफ मिलके है ना, मुरक्कबात में से है ना, है ना। तो हा अलिफ जबर, आधी आवाजों की पूरी आवाज, पूरी आवाज, दाल या ज़ेर, दी, आधी आवाज की पूरी आवाज, पूरी आवाज, पूरी आवाज क्यों पूरी आवाज? याए मारूफ की पक्की तख्ती है, याए मारूफ की पक्की तख्ती ये है। भी पूरी आवाज, ये भी पूरी आवाज। कैसे पढ़ेंगे? हादी, बस क्या पढ़ेंगे? हादी, बस यही जगह अगर में आ गई तो कहाँ लमाना कहाँ नहीं लमाना आपको सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कैसे पढ़ेंगे? हादी, हाकी, आली, फानी। इंशाल्लाह माशाल्लाह समझ में आ गया। इसी को हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, नी फा, नीफा, नी हा, नीहा, नी बा, नीवा, नी हा। दीहा, आगे लफ्ज़ दी नी है, वो क्या है? दालिया ज़ेर, दी, दालिया ज़ेर, दी, याए मारूफ की पक्की तख्ती, नून या ज़ेर, नी, याए मारूफ की पक्की तख्ती। दी को भी पूरी आवाज और नी को भी पूरी आवाज, क्या हो जाएगा वो? दी, नी, क्या हो जाएगा? दी, नी, आगे बढ़ जाए। हाँ, माशाअल्लाह। याए मारूफ की पूरी आवाज़ों की इश्काल तोड़। फा खड़ी ज़ेर, फी, फा खड़ी ज़ेर, फी, आधी आवाज की पूरी आवाज, पूरी आवाज, हामिम ज़ेर। हिम, जल्दी पढ़ेंगे, लमा के पढ़ेंगे। नहीं, क्यों लमा के नहीं पढ़ेंगे? कि या मारूफ, अलिफ मारूफ, वाव मारूफ में, इन तीनों हरफ में या किसी भी हरफ में जब जज़म आ जाए तो खींचने का मामला नहीं रहता। अब हा को मीम से मिला देंगे, जल्दी पढ़ेंगे ना। तो हा मीम ज़ेर, हिम, तो फा खड़ी ज़ेर फी, हा मीम ज़ेर, हिम, क्या हो जाएगा? फी, हिम, नीचे दिया है फाया ज़ेर फी, याए मारूफ की पक्की तख्ती, पूरी, हा मीम ज़ेर, हिम, क्या हो जाएगा? फी, हिम, नीचे पढ़ते रहिए, फी, हिम, फी, हिम, अगर ऐसा रहा खड़ी ज़ेर रहा तो भी फी हिम, और याए मारूफ की रहा तो भी फी हिम, क्योंकि जो काम याए मारूफ करेगा वही काम खड़ी ज़ेर, क्योंकि उसमें भी पूरी आवाज और इसमें भी पूरी आवाज। या साकिन से पहले अगर ज़ेर लग जाए तो याए मारूफ की पूरी आवाज हो जाती है। तो अब ये हमारे समझ के लिए दिया है कि देखो खड़ी ज़ेर रहा तो भी वही आवाज है और या मारूफ रहा तो भी वही आवाज वही है। आवाज है। हम पढ़ते हैं ईला फीहिम, क्या पढ़ते हैं? ईला फीहिम, ई को भी लमा रहे हैं, ला को भी लमा रहे हैं, क्योंकि अलिफ के लिए जो है हमजा के क्या है? ज़ेर, खड़ी ज़ेर है। ला के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर है ना। तो ई को भी लमा रहे हैं और ला को भी ईला फीहिम, और कुलूबिहिम है तो फिर कुलूबिहिम, बिहिम को जल्दी कर दे रहे, बिहिम है, और फीहिम है तो फिर लगा दे रहे। क्यों? या साकिन से पहले ज़ेर आ गया है तो अब याए मारूफ की वो पक्की तख्ती हो गई है। चलिए पढ़ते हैं, फीहिम, 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 क्या होगा? दी होगा कि दी होगा? आधी आवाज की पूरी आवाज, तो पूरी आवाज पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इन दी, अगर इन का है तो दाल के नीचे ज़ेर है, आधी आवाज होगी इन का। लेकिन अगर इन ही है, दाल खड़ी ज़ेर दी, हा खड़ी ज़ेर ही है, अब आ जाएगा पूरी आवाज इन दी ही। इन दी, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? इन दी, क्या पढ़ेंगे? इन दी, जिद दी, जिद दी, पूरी ज़ेर, याए मारूफ की पक्की तख्ती, पूरी आवाज, क्या पढ़ेंगे? जिद दी, क्या पढ़ेंगे? जिद दी, जा कौन सा हरूफ है? सीटी वाला, कौन से हरूफ है? सीटी वाला, सीटी वाले हरूफ है। गरम, कौन से हरूफ है? सीटी वाले हरूफ है। आवाज कौन सी आएंगी? आवाज कैसी आएंगी? हाँ, सीटी की आवाज आएगी ना, तो कैसे पढ़ेंगे उसको? हाँ, जिद दी, जिद दी, कैसी आएगी आवाज? जिद दी, जल्दी आएगी ना?
कैसे रखते हैं, ठीक है। इल्मी इल्मी क्या पढ़ेंगे, इल्मी इल्मी। इल्मी यहाँ पे नीचे क्या है, इल्मी। इल्मी। जो काम खरीदकर कर रहा वही काम या मारूफ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, या मारूफ की पूरी आवाजों के शिकार जोड़ और तोड़। काफ बा जबर, काफ बा जबर, कब, काफ बा जबर कब। लाम के नीचे क्या है, ज़ेर आधी आवाजों की पूरी आवाज। आधी आवाज कैसे पढ़ेंगे, क़ब्ली कैसे पढ़ेंगे, क़ब्ली हाँ मद खड़ी जेर, ही एक खड़ी जेर है पूरी आवाज, मद है दुगनी आवाज। कैसे पढ़ेंगे, क़ब्लिही कैसे पढ़ेंगे, क़ब्लिही कब। कैसे पढ़ेंगे, कब। क़ब ठीक है, 5 हर्फ ऐसे हैं जो कलकला के हर्फ है। किसके हर्फ हैं, कलकला के कलकला के हर्फ। किसके हर्फ हैं, कलकला के काफ ता बा जीम दाल। कितने हर्फ हैं, जिनको एक जगह मिला कर देगा, कुतुबो जद्दीन। क्या कहा है, कुतुबो जद्दीन। कुतुबो काफ ता बा जीम दाल जद्दीन, कुतुबो जद्दीन। ये 5 हर्फ किसके हैं, कलकला के। यानी मतलब क्या होगा, इन 5 हर्फ में जब भी जज़म होगा, क्या होगा, जज़म होगा तो उसको पढ़ते वक्त उसकी आवाज मखरज से टक्कर खाकर आएगी। मखरज से टक्कर जैसे है कि हम दीवार में से बॉल मारते हैं तो बॉल के साथ ट्रक यहाँ से आती है ना, वैसे ही इन 5 हरफ में जब भी जज़म होगा तो आवाज एक लौटती हुई आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी, लौटती हुई वापस पलटती हुई आवाज आ गई। तो बा के ऊपर जज़म है, हम पढ़े कब। क्या पढ़ेंगे, क़ब क्या पढ़ेंगे, कब। जब, है ना। क्या पढ़ेंगे, क़ब अब कब को हम क्या पढ़ेंगे, कलकला के रूप में। कैसे पढ़ेंगे, कॉफ बा जबर कब। कब। क्या पढ़ेंगे, कब कब नहीं पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, कब। क्या पढ़ेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, कब लाम जेर ली आधी आवाज है, क्या हो जाएगा, क़ब्ली कबली। नहीं, नहीं। कैसे हो जाएगा, कबली। कबली। क्या हो जाएगा, कबली। हाँ खड़ी मत जेर, ही कितनी आवाज है, दुगुनी आवाज। कितनी आवाज है, दुगनी आवाज एक खड़ी जेर की आवाज और एक मत छोटी मत की आवाज, दुगनी आवाज। कैसे हो जाएंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, क़ब्लिही कबलीही, क़ब्लिही है ना। कैसे पढ़ेंगे, कबलीही कैसे पढ़ेंगे, कबलीही या खड़ा मत जबर, या आधी आवाज की पूरी आवाज। पूरी आवाज कैसे पढ़ेंगे, बा जबर, ब आधी आवाज की पूरी आवाज। आधी आवाज कैसे पढ़ेंगे, या ब। कैसे पढ़ेंगे, याब कैसे पढ़ेंगे, याब या मत जेर, नी कितनी आवाज आएगी, दुगनी आवाज। एक या मद्दा की आवाज और एक या मारूफ की आवाज और एक छोटी मत की आवाज। तो कितनी आवाज हो गई, दुगनी अब कैसे पढ़ेंगे, या बनी शाबाश। या बानी नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, या बनी कैसे पढ़ेंगे, या बनी या बनी। या बनी कैसे पढ़ेंगे, या बनी लाम जेर, ली लाम जेर ली आधी आवाज है, हमजा हा जबर अह। क्या हो जाएगा, ली अह। ली अह। क्या हो जाएगा, ली अह ले ली नहीं, ली अह, ली अह ली अह। ली अह लाम जेर ली ली अह, ली 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 अह ली ली अह, ली नहीं, आधी आवाज आएगी, ली अह ली, ली अह ली क्या पढ़ेंगे, ली अह ली क्या पढ़ेंगे, ली अह ली और हा के नीचे क्या है, जेर खड़ा जेर खड़ी जेर है, एक आवाज, छोटी मद है, दो दुगनी आवाज, आवाज। दूसरी आवाज। कैसे पढ़ेंगे, ली अह ली ही बस माशाअल्लाह, ली अह ली ही। ली अह ली ही कैसे पढ़ेंगे, ली अह ली ही नीचे पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ेंगे, यफ्ताही हाँ यस्ताही। तही कैसे पढ़ेंगे, तही कैसे पढ़ेंगे, यस्ताही। कैसे पढ़ेंगे, यस्ताही कैसे पढ़ेंगे, यस्ताही अहलिही ली अहलिही या बनी या बनी क़ब्लिही क़ब्लिही
قوله بات سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. ہاں یا معروف کی پوری آواز و اشکال. اب یہ جو بڑی مد ہے اس کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ چوگنی. چوگنے آواز. اس مد کو جو ہم آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی مد کو. تو یہ بڑی مد چھوٹے ہمارے سمجھنے کے دیا ہے. اصل مد جو ہوتا ہے مد کی 6 قسمیں ہیں. مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لیل لازم، مد لیل عارض. اور 6 کے الگ الگ اقسام ہیں. 6 کو کھینچنے کا الگ الگ طریقہ ہے. کسی کو 2 2.5 5 ہے، کسی کو 2 3 5 ہے، کسی کو 2 4 5 ہے نا. کسی کو 3 4 ہے، کسی کو 4 5 ہے نا. کوئی توسط ہے، کوئی طول ہے، کوئی قصر ہے. وہ قرط کی زبان میں ہے. وہ آپ لوگ اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خالی اتنا ہی پڑھنا آ گیا تو ماشاءاللہ بہت کچھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بڑی مد ہے. اس کی کتنی آواز رہیں گی؟ چوگنی. کتنی آواز رہیں گی؟ چوگنی. ہم پڑھتے ہیں سین یا زیر. سین کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں سیٹی کی آواز رہیں گی. اور سین کو لما کے پڑھیں، کھینچ کے پڑھیں گے ہے نا. کھینچ کے پڑھیں گے نا کیونکہ سین 3 حرفی حروف میں سے ہے. تو پہلے پڑھیں گے سین یا زیر. جب کو لمائیں گے کیوں؟ 3 حروف والے نہیں سی کو اتنا پوری آواز کیوں کریں گے؟ اس کے لیے پہلے کیونکہ یائے معروف سے پہلے زیر ہے. یائے معروف سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. زیر ہے. اور یائے معروف سے پہلے اگر زیر ہو تو آواز اس کی پوری ہو جاتی ہے. تو سین یا زیر. ٹھیک ہے. کسی یا کے اوپر مد ہے. مد جو ادھر لکھا تھا مد جو ہے یا کے اوپر ہے. کس کے اوپر آئے گا؟ یا. تو اب ہو جائے گا سین یا مد زیر سی. کیا ہو جائے گا؟ یا مصدر سی. 4 گنی آواز کہاں پہ آئے گی؟ اب اسی یا کے اوپر آئے گی. کس کے اوپر آئے گی؟ یا کے اوپر آئیں گی. یا کے اوپر آئے گی کیونکہ یا مدہ ہے اور یا کے اوپر ہی مد ہے. حروف مد بھی 3 ہے، حروف علت بھی 3 ہے. جو حروف علت ہے وہی حروف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر، واو سے پہلے پیش ہو. پورے قرآن میں کہیں بھی اگر مد ہے تو صرف ان 3 حرفوں کی وجہ سے ہے. ان 3 حرفوں کے علاوہ مد پورے قرآن میں کہیں ہو سکتا نہیں. پورے قرآن میں کہیں مد نہیں ہو سکتا. کہیں بھی مد ہوگا تو ان 3 حروف میں سے ایک حروف کا وہاں ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. اگر ان 3 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف نہ ہو تو وہاں مد نہیں ہو سکتا. نہ مد وہاں لکھا جائے گا اور نہ ہی مد وہاں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ یا ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے. کیا ہے؟ یا مدہ ہے. یا مدہ ہے. اس کے اوپر بڑی مد ہے. اس کے اوپر کیا ہے؟ بڑی مد ہے. اب پڑھیں سین یا مد زیر سی. 4 گنا. سین یا مد زیر سی. ہے نا. سین یا مد زیر سی. حمزہ تا زبر تو ات. حمزہ تا زبر حمزہ کے اوپر زبر رہ گیا. حمزہ تا زبر سی ات. سی. کیا ہو جائے گا؟ سی. کیا ہو جائے گا؟ سی. ٹھیک ہے. جی ات. کیا ہے؟ جی. کیا ساکن ہے؟ یہاں سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے. مد یا کے اوپر آ جائے گا. جیم یا مد زیر جی. 4 گنا. جیم یا مد زیر جی. حمزہ زبر حمزہ زبر جی. کیا ہو جائے گا؟ جی. کیا ہو جائے گا؟ جی. اب سے نیچے پڑھتے ہیں. اس کو آپ لوگ پڑھے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہجے کیجیے تو. نون یا زبر نی. ہجے کیجیے پہلے. ایک ایک حرف توڑ تو کے ہجے کیجیے. زبر ہا. نون یا زبر نی. یا مد زیر. نون یا مد نی. تو کیا ہو گیا؟ ہنی. کیا ہو جائے گا؟ ہنی. کیا ہو جائے گا؟ ہنی. یہ حمزہ کے اوپر بھی زبر کر دیا، الف کے اوپر بھی زبر کر دیا ہے. اب ہو جائے گا ہنی آ آ. کیا ہو جائے گا؟ ہنی آ آ. ہنی آ آ. کیا ہو جائے گا؟ ہنی آ آ. لیکن وہ زبر الف کے اوپر نہیں رہے گا، وہ حمزہ الف پر آ ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ اگر حمزہ الف پر آ ہو جائے تو کتنی آواز ہو جائیں گی؟ پوری. کتنی ہو جائیں گی؟ پوری. پوری آواز. اور زبر ہے تو کتنی آواز ہے؟ آدھی. کتنی آواز ہے؟ اب پڑھتے دیکھیں.
हनी क्या है? हनी जबर को हटा देते हैं, हनी हनी में आ गई। जबर रहा तो आधी आवाज, अलिफ मारूफ से पहले जबर रहा तो पूरी आवाज, खड़ा जबर खड़ी जेर रहा तो पूरी आवाज। नीचे पढ़ते हैं, क्या है ये? खातीअतिहिम हालांकि लफ्ज है खतीअतिहिम है, खा के ऊपर जबर है, क्या है? के ऊपर जबर है। और लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो जो लिखा है हम उसी को पढ़ते हैं। तो खा के ऊपर क्या है? खड़ा जबर है, तो आधी आवाजों की पूरी आवाज, पूरी आवाज कैसे पढ़ेगा? खा खड़ा जबर, खा या मद जेर, ती खा या मद जेर, ती क्या हो जाएगा? खाती हाँ, हमजा के ऊपर जो है जबर होना चाहिए, हमजा जबर आ, तो क्या हो जाएगा? खाती ताज़िर ती क्या हो जाएगा? खाती हामिम ज़ेर हिम क्या हो जाएगा? खातीअतिहिम हाँ? खातीअतिहिम क्या हो जाएगा? खातीअतिहिम। देखिए वहाँ ऊपर दिया जबर दिया, ठीक है? तो वहाँ पे खड़ा जबर किया है हमजा के ऊपर, है ना? तो जबर जो है हमजा खड़ा जबर जो है इसके ऊपर आ गया है, खड़ा जबर जो है खा के आ गया। तो यहाँ पढ़ेगा खतीअतिहिम, खातीअतिहिम बोल के दिया है ना? खतीअतिहिम, है ना? खातीअतिहिम खा जबर खा, आधी आवाज, पाया मद जेर ती चार गुना आवाज, खती हमजा खड़ा जबर आ, पूरी आवाज, खती आ ताज़िर ती खती आ ती हामिम जेर हिम खती आ ती हिम। खातीअतिहिम। सुनावी बात, आगे बढ़ते हैं। हो गया सिलेक्ट, माशाअल्लाह। तो आज का सबक यहीं तक रहा। इंशाल्लाह कल हम इसका आगे जो असबाक है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज बहुत कुछ हम लोगों को हिज्जे करने का, रवा पढ़ने का और लमाने का तरीका हमको और आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? बहुत कुछ आ गया। कहाँ लमाना है समझ में आ गया, किसको कितना खींचना है समझ में आ गया। असल चीज़ यही है, असल चीज़ जो है यही है, किसको कितना खींचना है, कब खींचना है, कहाँ खींचना है और कैसे खींचना है ना? कब खींचना है, कहाँ खींचना है, कितना खींचना है और कैसे खींचना है। ठीक है? कब खींचना है? जब मद हो तब खींचना है। कैसे खींचना है? खड़ा जबर है तो ऊपर खींचना है, खड़ी जेर है तो नीचे खींचना है। कहाँ खींचना है? जहाँ पे मद्दा हो वहीं खींचना है। कितना खींचना है? जबर रहा तो आधी आवाज़ आधी खींचना है, खड़ा जबर रहा तो पूरी आवाज़ खींचना है, छोटी मद रहा तो दुगनी आवाज़ खींचना है, बड़ी मद रहा तो चौकी आवाज खींचना है। बात समझ में आ गई? जहन में बातें बैठ गई? इंशाल्लाह इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। कुरान खोल करके हमको 10 वरक नहीं पढ़ना है इस रमज़ान, बस 2 आयत पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। उस पर अगर आपने तवज्जो कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका एक दिन में 10 वरक पढ़ना एक तरफ है, वो 2 आयत पढ़ना एक तरफ है। वो 2 आयत पढ़ना एक तरफ। फिर भी अगर आप सही नहीं पढ़ते हैं तो वो 2 आयत की तरह आपके वो 10 वरक पढ़ना नहीं हो सकता। उस 2 आयत की तरह वो 2 वरक, वो 10 वरक पढ़ना नहीं हो सकता। वो 2 आयत जो आपने पढ़ा है कायदा कानून के साथ पढ़ा है ना? कैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ा है, और इस पर गौर करने पर तो इतना सवाब है कि बता नहीं सकता मैं। बार अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों पे गौर करो, तफक्कुर करो, बार बार देखो, समझो। और आप कुरान पर गौर करना चाहते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हाँ, इससे बड़ी बात और? इसलिए कुरान खोलिए जब भी मौका मिले, इन चीज़ों को देखिए। ये मद बड़ी है कितना खींचना है, छोटी मद है कितना खींचना है, खड़ा जबर है कितना खींचना है, जबर है तो कितना खींचना है। अगर आपको 2 लाइन पढ़ने में अगर आपको 10 मिनट लग गए और वो 2 लाइन में आपने समझ लिया कि ये इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना खींचना है, आप कामयाब हो, आप ठीक है? इसको बार बार सुनिए, बार बार जो रिकॉर्डिंग है इसको भी सुनिए आप बार बार। सबक एक एक सबक पढ़ाया जाता है, इसमें बिल्कुल
جو ہے دکھایا جاتا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ گرم ہوتے